Hi student, look, till now we have discussed about the topic trigonometry. In trigonometry we have discussed about its basic t ratios, then we have discussed about some values of t ratio for some specific angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and then 90 degree. Then we have discussed about its trigonometric identities. Also we have discussed about some basic concept of its complementary angles there. Then we have done so many problems regarding with our trigonometry there. Now in today's class we are going to start with our application of trigonometry, in which we have discussed about problems related with height and distance. Then first of all, before we are going to discuss with height and distance concept, and we are going to start with some basic terms and concept with look, when we are going to dealing with the application of trigonometry, then our basic terms is that it's a problem related with height and distance. What do we do? Just suppose we have a tower. AB is the tower is okay. We have AB is tower of some height at meter, and this is the B. B represents foot of the tower. Now from the B foot of the tower, just suppose in the same line of horizontal line, in same line of suppose in this line of the foot, it's a horizontal line C. This is the C. From C, it's the observer I here. Just suppose observer is here and C represent its I. Then sorry, now we are going to join in AC. C is the observer I. C is the observer I, and A. Observer view the point A here. Then from the horizontal, it makes the angle theta. This angle theta is known as our what? Angle of elevation. This is our angle of elevation, and this is line AC. AC line is not what? It is our called line of sight. This is our line of sight. Now look, what we discussed till now, we have discussed that when observer observes some point A, which is the height on the it is above the horizontal line above, from the point which C from which he observed the point A. Then joining AC, we get the line of sight, and the angle matched by the horizontal line is known as our angle of elevation. ठीक है बेटा, क्या हमने डिस्कस किया कि हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट सी पे वहाँ पे उसकी आई है वो ए बी, एक टावर है इसकी हाइट एच है, उसके पॉइंट ए को वो ऑब्जर्व कर रहा है. जो हमारा ए सी है ज्वाइनिंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग लाइन ऑफ जिस उसके आई को उस ऑब्जर्वर को उस पिक पॉइंट को हमने जब ज्वाइन करवा दिया तो जो हमारा बेटा लाइन ए सी है, सॉरी वो हमारा लाइन ऑफ साइट है, एंड बी सी द होरिजोनटल लाइन, and the angle made by the line of sight and the horizontal line is known as our angle of elevation. Then हमारे पास angle of elevation. Then look, we have discussed about application of trigonometry. हम discuss कर रहे हैं. हमारे पास कोई भी दो साइड्स हो, उसके रेस्पेक्ट में हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई एक एंगल को एक साइड हो तो दूसरा अननोन साइड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन ये तो बात है जब ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड लेवल पे है और वो किसी पिक को ऑब्जर्व कर रहा था. जब आपका ऑब्जर्वर किसी हाइट लेवल पे किसी पिक पॉइंट पे वहाँ से किसी ग्राउंड लेवल को वो ऑब्जर्व करेगा, देन उस केसेस में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्म्स क्या होगा. लुक, इस सेकंड कॉन्सेप्ट सपोज कि हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट ए पर है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पर था, यहाँ पे ए ऑब्जर्वर अगेन वो सेम, मान लिया वो क्या है, वो टावर पे पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहा है और ये ग्राउंड के लेवल पे सी पॉइंट पे कोई कार, कोई मैन, कोई कुछ भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है. तो बेटा ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है. देन पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे होरिजेंटल लाइन के,
ठीक है। अभी ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये उस ऑब्जर्वर की आई है और यहाँ से वो एंगल थीटा बनाएगा। दिस इज थीटा इज नोन एज व्हाट, ये एंगल हमारी क्या रहेगी बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज आवर एंगल ऑफ, दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन थी एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन को फॉर्म करेगा जब ऑब्जर्वर आपका हाइट को होगा, ग्राउंड लेवल किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्म होगा जब ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा और किसी हाइट के ऑब्जेक्ट को, किसी पक्षी को, किसी भी चीज़ को, एरोप्लेन को, किसी टावर के पिक को, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर। देन वी हैव बेसिकली दिस टर्म्स, व्हाट आर टर्म्स, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 टर्म्स है। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस BC एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो अवर एंगल थीटा। ठीक है बेटा, हमारा ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस बेसिस पे अगेन वी गेट अबाउट, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर आपस में, ये 90 डिग्री होगा। देन वी कैन अप्लाई आवर व्हाट, वी कैन अप्लाई हियर application of trigonometry. By using application of trigonometry we can find out the any unknown values there, जो भी हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना होगा उसकी वैल्यू बेटा हम वहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, देन टिल नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट, हमने लाइन ऑफ साइट देखी। लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जर्वर की आई और जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है उस जो लाइन, दोनों ऑब्जर्वर की आई और उस ऑब्जेक्ट को जो व्यू उसको ज्वाइन करवा रही है हमारी लाइन ऑफ साइट है। ऑब्जर्वर हाइट पे, सॉरी ऑब्जर्वर हाइट के ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करेगा। ऑब्जर्वर हाइट पे ग्राउंड लेवल किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा। दिस इज आवर बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद व्हाट, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन को समझा। देन नाउ लुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए we are going to take one question. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. ठीक है, अभी अब हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है कि हमारे पास एक ट्री है और वो ट्री आपका बेटा क्या होता है, वो ट्री आपका स्टॉर्म आती है, कुछ विंड आती है, देन वो ब्रेक होके बैंड हो गया, बैंड टू द ग्राउंड लेवल, एंड देन वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है एंड देन किसी ग्राउंड किसी पॉइंट जाके टच कर रहा है, उस लेवल पे हमें ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री को फाइंड आउट करनी है। देन लुक वी आर गोइंग टू टेक a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। जो सपोज कि जो हमारी ओरिजिनल ट्री थी बेटा, वो जो सपोज कि हमारा पहले ये लेते हैं कि जहाँ से वो बेंड हो गया है, जो सपोज कि फिगर में ये पॉइंट ए है, ए से ही ये जो हमारा ट्री है, इसके ऊपर भी ट्री थी हमारी, तो सपोज ये पार्ट है और ये पार्ट स्टॉर्म से ब्रेक होके ये पार्ट क्या हो गया आपका, ये ग्राउंड लेवल पे आ गया है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे आ गया है और ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। जो सपोज इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये हमारे पास 8 मीटर दे रखा है, ये पॉइंट सी। ठीक, अब हम क्या करते हैं बेटा, जो हम BD लेते हैं वो BD हम क्या करते हैं, ये AB को H लेते हैं और ये हमारा X है, ये H मीटर और ये हमारा बेटा X मीटर। देन
अगर ये x है, ये पार्ट ही टूट के यहाँ पे बेंड हुआ है, देन ये लेंथ AC लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, x मीटर। बात समझ में आ रही है आपको? ये सेम लेंथ ही ब्रोक होके, स्टॉर्म के थ्रू ब्रोक होके हमारा एक पॉइंट C पे लीन कर रहा है। देन अगर ये आपकी x मीटर है तो ऑब्वियसली ये AC भी क्या होगी, आपकी x मीटर होगी। देन नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD? BD इज व्हाट, हाइट ऑफ द ट्री, इट्स इक्वल टू व्हाट, h प्लस x मीटर। BD हमारा एक्चुअल हाइट। नाउ वी हैव टू मेजर दिस BD। हमें लेंथ ऑफ BD को ही यहाँ पे बेटा फाइंड आउट करना है। BD इज इक्वल टू h प्लस x मीटर, हमें इसको ही फाइंड आउट करना है। देन नाउ अभी क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, क्या करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल। नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जहाँ पे हमारे पास एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दे रखा है। वी आर गोइंग टू यूज बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द दिस हाइट h, फिर हम दोबारा यूज करके क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टू गेट h, ये हमारा एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारी बेटा परपेंडिकुलर होती है और ये बेस है। देन इन ट्राइंगल ABC व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इन ट्राइंगल ABC, क्या ये परपेंडिकुलर टू द बेस मीन्स 10 मिलेगा हमें। देन 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ठीक है बेटा। नाउ क्या होती है वैल्यू इन 30 की, वी हैव 1 अपॉन रूट 3। AB क्या है, इट्स h मीटर, BC इज आवर 8। देन वी गेट फ्रॉम हियर द हाइट h इज व्हाट, 8 बाय रूट 3 मीटर, 8 बाय रूट 3 मीटर। जो में look we get that this height h is what 8 upon root 3 मीटर, हमें हाइट 8 by root 3 मीटर मिल चुकी है, ठीक। देन now we get the this height AB। now we have to get to this original height of tree, now we have to we get x। अब मीन्स x की वैल्यू चाहिए। to get this value of x, इस x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास अभी दो चीज़ें हैं, दो मेथड्स, दो वे हैं। नाउ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हमें ये 8 पता है, हमें ये 8 बाय रूट 3 पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ x। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके, ओके नाउ वी हैव गेट दिस 8 एंड दिस इज व्हाट 8 बाय रूट 3, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू डू अगेन इन ट्रायंगल ABC। अभी हमारे पास ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। देन वी कैन टेक व्हाट दिस रेशियो, यस cos 30 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू बेस टू द हाइपोटेनस, बेस इज आवर a, हाइपोटेनस इज x। क्या होती है वैल्यू बेटा cos 30 की, tan 30 1 बाय रूट 3। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 sin 60 कंप्लीमेंट्री होते हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू रूट 3 बाई 2। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें x की वैल्यू मिलेगी इट्स अगेन 16 अपॉन रूट 3 मीटर। क्या मिला बेटा 16 अपॉन रूट 3 मीटर। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, वी हैव आल्सो वैल्यू ऑफ h। Then now we are going to find out our BD. This BD can be calculated by h plus x means 8 by root 3 plus 16 by root 3. What do we get? 8 plus 16 24, 24 by root 3। तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। And the height of tree BD is given by 24 root 3 upon 3, then we get 8 root 3 मीटर। तो then we get, हमने BD जो हमारी हाइट ऑफ ट्री है, हमने क्या what we measure by application we measure that the height of tree is what 8 by root 3 मीटर। जो हमारी हाइट एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री थी इट्स what 8 by root 3 मीटर। आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, put in the value of root 3 1.732, आप 1.732 वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
8 6 5 10 इट्स अप्रॉक्स 13 पॉइंट समथिंग आपको इसकी वैल्यू लेंथ ऑफ द जो ट्री है यू गेट अ 13 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 13 के आसपास आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन वी आर गोइंग टू बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन वी टेक सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length for the slide in each cases? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी प्रॉब्लम है वहाँ पे दे रखा है कि वो 2 तरह के स्लाइड्स को कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि ढालना चाहता है वहाँ पे। कुछ है जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए है और कुछ एल्डर बच्चों के लिए। बिलो द 5 ईयर्स के जो स्लाइड की उन्होंने बनाई रखी है वहाँ पे उन्होंने जो एंगल ले रखा है वो ले रखा है 30 डिग्री और हाइट जो ले रखी है वो ले रखी है 1.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों केसेस को मेजर कर लेते हैं। जो फर्स्ट केस है यहाँ पे वो ए बी जो हाइट ऑफ स्लाइड्स है उन्होंने वहाँ पे 1.5 मीटर लिया, एंगल 30 डिग्री लिया, ठीक है बेटा। देन हमें यहाँ पे इस AC को मेजर करना है। और दूसरा केस भी लेते हैं जब उन्होंने सेकेंड स्लाइड लेते हैं डी, उन्होंने हाइट को बढ़ा के 3 मीटर कर दिया, एंगल को भी डबल कर दिया, 30 की जगह पे 60 डिग्री कर दिया। देन इन बोथ केसेस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस AC एंड DF। हमें जो लेंथ ऑफ स्लाइड्स है हमें इन दोनों केसेस में हमें AC और DF को मेजर करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस AC एंड DF बाय यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगेन हाइट एंड डिस्टेंस केसेस मैंने कहा कि हमारे पास एप्लीकेशंस में क्या होना चाहिए, हमें कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए। देन तीसरी अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल है, 1 साइड है, एंगल 1 साइड है। अगेन थर्ड अननोन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। देन तो इसी 30 डिग्री ये हमारा परपेंडिकुलर जगह उसके रेस्पेक्ट में हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये हमारा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा, कौन सा रेशियो यूज करते हैं? यस, वी यूज आवर साइन। इन दिस फर्स्ट केस in triangle ABC we applying application of trigonometry, then we have sin theta, we have take theta is what we have to take 30 degree. Now sin 30 degree is what AB to the AC, we have to measure this AC. The value of sin 30 is 1/2 AB, we have 1.5, we have to find out this AC. Then we get AC is what, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ AC इज व्हाट 3 मीटर। मींस फर्स्ट केस में जो बच्चे हैं एज इनकी एज 5 बिलो 5 इयर्स है, उन बच्चों के लिए जो हमारी स्लाइड्स की लेंथ है वो AC को क्या आना चाहिए, 3 मीटर का रखी हुई है, 3 मीटर्स की लेंथ मिलेगी। ठीक है बेटा, इट्स आवर 3 मीटर। यहाँ पे करते हैं नाउ इन ट्रायंगल DEF, again triangle DEF or right angle triangle. In triangle DEF we have to find out this D. Again this is our perpendicular, this is our hypotenuse. Then sin 60 degree is equal to DE to the DF.
चौथी वैल्यू साइन 60 इट्स √3/2। डी हमारा क्या है 3, डी एफ हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी एफ। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन डी एफ इज वॉट 6/√3। फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, देन वी गेट 2 × √3। जो हमारी डी एफ की वैल्यू हो क्या हो जाएगी बेटा 2√3 मीटर। ठीक है, इट्स 2√3 मीटर। तो जो उन्होंने दोनों केसेस में लिया हुआ है, फर्स्ट केस में 3 मीटर है, यहाँ पे जो एल्डर बच्चे हैं उनको लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो हमारी बेटा 2√3 मीटर। 2√3 मीन्स अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 इज व्हाट 1.732, देन 2740 4 एंड 212 अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आपके पास ये इनकी डीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन ये हमारी क्वेश्चन थी। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, नाउ वी हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन आप सिंपल्स ऑफ फिगर ड्रॉ करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑफ फिगर ड्रॉ करिए, देन चेक करिए कि आपको क्या गिवन है और क्या नोन है, उनके बीच रिलेशनशिप, देन अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें कौन सी रेशियो यूज करनी है, साइन। बेसिकली जो देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो मोस्टली साइन, कोसाइन और टेंजेंट ही होती है। अब ऐसा नहीं कि बाकी रेशियो नहीं आएगी, पर मोस्टली वी हैव यूज हियर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। देन आपको वो भी बेसिकली द एंगल्स व्हाट वी यूज हियर एट योर लेवल, इट्स जनरली साइन 30, साइन 60, cos 30, cos 60, tan 30, sin 60 एंड 45। ये एंगल्स ही मेजर करेंगे। प्लीज़ लर्न दिस वैल्यूज़, आप इन सारे वैल्यूज़ को लर्न करके रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question what we have, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अब इट्स गिवन दैट एक बच्चा है जो इसकी लेंथ 1.5 मीटर टॉल, लेंथ 1.5 मीटर है, वो एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। Then the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walk towards the building. ठीक है, लोग इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू बी सीरियस। ये बच्चा है तो बिल्डिंग से इसकी हाइट 1.5 है, 30 मीटर की बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। जो सपोज बिल्डिंग ठीक है, ये भी हमारी बिल्डिंग है और ये CD बच्चा हमारा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। देन वो मूव करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होती है कहाँ, फर्स्ट पॉइंट से अगर वो वॉच कर रहा है देन इट्स 30 डिग्री। जो फर्स्ट पॉइंट से 6 ऑब्जर्व कर रहा है तो जो टॉप से बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, ये इसको यहाँ से डाल दीजिए, इससे बी टेक पॉइंट, देन 30 डिग्री। जैसे वो मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री जा रही है। तो सपोज कि वो CD से पहले CD था उस पॉइंट पे आ रहा है, समथिंग पॉइंट EF पे यहाँ पे लड़का खड़ा हो रहा है। देन आवर एंगल ऑफ एलिवेशन टर्न्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से 60 डिग्री हो गया, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, अब जो हमारा CDBD तो यहाँ पे डी ले लिया है, ठीक है, E लेते हैं इसको। तो बेटा CEBD, जो हमारा CEBD है रेक्टेंगल है, तो जो लेंथ आपकी CD होगी वही लेंथ आपकी B होगी। ये आपकी 1.5 हो गई, ये लेंथ आपकी 1.5 हो गई। टोटल लेंथ दे रखी थी बिल्डिंग की 30 मीटर, तो आपकी ये लेंथ क्या होगी, जो लेंथ AE है वो क्या हो जाएगी बेटा 30 - 1.5 28.5। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हाइट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इतनी हाइट को हमें वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे की हाइट है वो 1.5 है। ठीक है, हमने उसकी हाइट पुट कर दी। देन हमारी जो कंसिडरिंग होगी द ट्रायंगल
देखो ये हमने ई भी ले रखा है, ए बी सी डी ई एफ भी हो चुका है, तो इस पॉइंट को हमें जी देना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। नाउ वी हैव टू कंसिडर ट्राइंगल टू टाइम्स ए जी ई। हम एक बार ए जी ई को कंसिडर करेंगे, देन वी हैव टू टेक ए जी सी। तो अब क्वेश्चन में आज क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में आज कर रहा है हमें डिस्टेंस निकालनी है, डी एफ इज इक्वल टू सी। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी एफ, हमें इस डी एफ को निकालना है, डी एफ इक्वल टू सी, दोनों इक्वल्स है, तो हमें डी एफ या सी को मेजर करना है, क्योंकि वो कितना मीटर बिल्डिंग की तरफ मूव किया है, हमें बेटा इसको ही, इस वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो नाउ हमें ए जी, इस ए जी की वैल्यू पता है 28.5, तो कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विच वी आर गोइंग टू टेक इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए जी ई। ट्रायंगल ए जी ई लेते हैं, हमें बेस की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, बेस की ज़रूरत है, ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें कौन सी रेशियो चाहिए। नाउ वी हैव यूज अ व्हाट, हमें टेंजेंट रेशियोज की यूज करनी पड़ेगी। देन वी आर गोइंग टू टेक 10 एंड एंगल इज व्हाट, दिस इज आवर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस। तो ये तो हमें पता ही नहीं इजी, क्योंकि आई होप सो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इजी। देन 10 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 28.5 अपॉन ईजी, हमें ईजी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। देन 10 60 वैल्यू क्या होती है बेटा, इट्स √3, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ईजी, हमें ईजी की ही नीड्स है। देन ईजी इज व्हाट, वी गेट 28.5 अपॉन √3। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ ईजी, हमने ईजी की वैल्यू निकाल रखा है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू टेक अगेन इन द ट्रायंगल AGC, इन ट्रायंगल AGC वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट, हमें क्या मेजर करने जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मेजर द वैल्यू GC। हम क्या करने जाएंगे बेटा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू GC। तो देन वी आर गोइंग टू टेक अगेन इन ट्रायंगल AGC लेते हैं, ट्रायंगल AGC। नाउ वी हैव दिस एंगल इज आवर 30 डिग्री, देन 30 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज होल GC इज बेस, देन 28.5 परपेंडिकुलर हमारी AG सेम थी 28.5, बेस इज नाउ आवर GC, देन वी पुट हियर GC। नाउ द वैल्यू ऑफ 1030 इज व्हाट, 1/√3, 28.5 अपॉन GC हमें मेजर करना है। देन द वैल्यू ऑफ GC इज व्हाट, 28.5 इंटू √3। ठीक है, अभी एक और थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इधर √3 आ जा रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, जिससे 28.5 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, देन वी गेट 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। तो जो वैल्यू हमारी ईजी की है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देन वी गेट 3 9 27, देन वी गेट 9.5 √3। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हाट, हमें DF या C को मेजर करना है। देन टू गेट, अभी हम चलते हैं C की तरफ, टू गेट C, हाउ वी कैन गेट दिस C, दिस C इज कैन बी मेजर्ड बाय GC, होल लेंथ GC में से क्या माइनस कर दे, GE या EG, GC माइनस GE और EG। GC की वैल्यू हमने क्या निकाला, वी गेट 28.5 √3, EG क्या मेजर किया, 9.5 √3। नाउ 28.5 माइनस √3 कॉमन कर लीजिए, 28.5 माइनस 9.5, 0.550 मीन्स 28 माइनस 9, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, वी गेट 19। देन वी गेट द वैल्यू हियर इज व्हाट, इट्स 19 √3। आई होप सो ऑल दिस आर इन द मीटर, क्वेश्चन को देख लेते हैं जैसे, यस मीटर, देन द लेंथ CE इट 19 √3 मीटर, मीन्स जो लड़का हमारा बॉय था, वो जो बिल्डिंग की तरफ मूव किया, उसकी डिस्टेंस क्या थी, ही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 19 √3 मीटर। Then it is enough for today class. Please
ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा। एंड थैंक्स टू ऑल।